مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، میرے بزرگوار جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی ایصال ثواب کے لیے میں کچھ کروں، ان کی بخشش کا باعث بننا، یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے. آپ کی دعائیں ان کے حق میں بھی قبول ہوتی ہیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی، ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا ہم سب کو اپنے بزرگوں کے لیے کرنی چاہیے. اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں ایسا بھی ہے کہ جب ایک انسان چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد جو نیکی کرتی ہے اس میں والدین اس کی تربیت کا کیونکہ حصہ ہے، تو اس کے ثواب میں بھی ان کا حصہ مل رہا ہوتا ہے. مل رہا ہوتا ہے. آپ کی نیکیوں میں بھی آپ کے والدین کا ایک حصہ گونا ان کی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے. دعائیں ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقات خیرات کر سکتے ہیں. سارے طریقے ہیں. مثلاً میں دسترخوان بچھاؤں اور یہ چاہوں کہ لوگ کھانا کھائیں، مساکین غربا، تو میرے ان کا ثواب آپ انہیں بخش سکتے ہیں. بالکل. قاری صاحب، یہ ہے ہوتا ہے ایک مستند چیز ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے؟ ایصال ثواب مستند ہے، لیکن جیسا لوگوں میں مشہور ہے ساری باتیں مستند ہیں. یہ بھی ایک فرق ہے کہ کون کون سے عمل کا ایصال. مالی جتنے بھی صدقات، مالی صدقات جتنے بھی ہیں، حتیٰ کہ بشمول قربانی، وہ آپ کسی بھی مرحوم کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں. مالی صدقہ، بھوکے کو کھانے کھلا دیا، دل میں نیت کر لی میں نے ابا کی طرف سے. ٹھیک ہے. کیا نہیں کر سکتے؟ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں. جو قولی عبادت اور بدنی عبادت ہے جس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں قرآن پڑھ کے بخشوں، یہ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے اس کا پروف ہے. قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اموات بھی اس وقت ہوتی تھی، لیکن کسی صحابی کو یہ نہیں سوچا کہ وہ کچھ پڑھ کر اس کو بخش دیں. یہ فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، کل خوانی، باقر خوانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں. شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو بدنی عبادات ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، میں کہوں کہ میں نماز پڑھ کے ابا کو ایک نماز آج اپنی پڑھوں گا، ایک ابا کی طرف سے پڑھوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں. چلو لا یکلف اللہ نفسا. علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایصال ثواب کا یہ حصہ کہ اس میں عبادتیں ہو رہی ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب کی گفتگو کا جو اگلا حصہ ہے وہ بالکل بجائے. مالی طور پر انسان اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی بھی کر سکتا ہے، ویسے ہی فقراء کو کھانا کھلا سکتا ہے، پہناوا دے سکتا ہے، پیسے دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں. حج اور عمرہ کے حوالے سے بالکل درست ہے. اپنے اگر بشرط ہے کہ اپنے اوپر حج واجب نہ ہو، اپنا حج ادا کرنے کے بعد مرحومین کے لیے بھی حج کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کے اوپر خود اپنا حج واجب ہے تو اسے ادا کیے بغیر کسی مرحوم کے لیے حج کرنا درست نہیں ہے. عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے. اما رہ گئی یہ بات کہ مثلا تلاوت قرآن کر کے اسے بخشنا، فاتحہ کر کے اسے بخشنا، ہمارے پاس تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے. یعنی عبادت بمعنی العام نہ بمعنی الخاص. حضور والا سے کوئی روایت ثابت ہے اس طرح کی؟ ہاں حضور اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مثلا کہاں پر یہ حدیث موجود ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس مسلمات میں سے ہے کہ آپ نے مجھے کیا کہا تھا؟ دلیل عین مدعا. یہاں دلیل عین مدعا نہیں ہے. یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بے دلیل بات، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دلیل عین مدعا والی بات نہیں ہے. وہ بات تو بالکل بھی نہیں. بہرحال تو ادلہ موجود ہیں. اس وقت کسی چیز کے بارے میں آپ کا مثلا ذہن میں حوالہ موجود نہ ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات درست ہے. یعنی قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے اپنے بزرگوار کو بخشوا سکتے؟ بالکل بلا شک و شبہ یہ جائز ہے. فاتحہ پڑھ کے آپ بخش سکتے ہیں. دیکھیے یہ ثواب ہے، ایک عمل ثواب ہے. اس عمل ثواب کو آپ اپنے آپ کو مالک بنانے کے بجائے اسے مالک بنا رہے ہو. خدا اس کا جو ثواب ہے وہ اسے دے دو، مجھے نہیں اسے دے دو. کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ مثلا یہ نہ ہو. اور اس میں آپ بھی کوئی دلیل دینا چاہیں گے اس حوالے سے، کیونکہ آپ بھی اسلامی ہیں؟ ایک اضافہ آپ کے سوال میں، آپ نے کہا جیسے مرحومین کے لیے ہم اس میں ایک شرط لازمی رکھ لیں کہ مرنے والا لا محالہ توحید پر فوت ہوا. اگر وہ شرک پر فوت ہوا ہے تو آپ کی ساری اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر. ہم تو اپنے بزرگوار کی بات کر رہے ہیں جو ایمان پہ
देखिए हज़रत ने एक बात कही कि जितनी कौली इबादत हैं वो नहीं दी जा सकती। अगर कोई एक कौली इबादत भी साबित हो जाए तो सारी साबित हो जाएंगी, यही बात हुई फिर। दुआ इबादत है, दुआ मुख्फुल इबादत कौल से होती है और बुजुर्गों के लिए की जाती है। ऐसे तो हज भी जिस्म से होता है। नहीं, ये तो आप कहें कि दुआ इबादत नहीं है, या तो आप कहें कि दुआ इबादत नहीं है, दुआ मुख्फुल इबादत कौली नहीं है, पैसों से दी जाती है। मैंने नफली नमाज की दलील में कि जमात होती है, अब आप जगह बदल लेते हैं, ये बात गलत। उसी का जवाब दे रहा हूँ। जितनी रिवायतें पेश की तो इन्होंने कहा ये तो अल्लाह के रसूल ने पढ़ी है, आप ऐसी दलील दो जो आपने ना पढ़ी। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, आप जो दलील दे रहे हो मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, वो मेरी दलील है इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल ने की है। आपने हुक्म कब्र पे खड़े होकर आपने दुआ की, तो वो भी इबादत है ना, और कौली इबादत है, और वो कॉल बोल के बोल है इबादत है इनके। कौली इबादत हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका जवाज का हुक्म दिया। सही, उनकी जिंदगी में साबित हो ऐसा, साबित ये हुआ बात भी। कर रहे हैं कारी साहब, ये तकाजा बुलंद कर रहे हैं। ये भी एक नहीं सवाल देखिए है। ना, देखें, जितने भी एक मैं एक और बात, जितनी भी माली इबादत है क्या सारी किस्मों की हुजूर से साबित है? नहीं भाई, वाह, नहीं, जितने हमने गिनवाए हैं, मसलन आप सदका करते आपने हैं, तो सबका हुक्म लगाया ना, हाँ, 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 ये हाँ। तो फिर सही सबकी नहीं है। दलील दें। सबकी कौली आ बात गया ना कि दें, बिस्मिल्लाह शुरू करें, मैं देखता हूं। इज़ा मातल इंसान इनका तामल हो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। अमलहु, इज़ा मातल इंसान मर गया तो उसका अमल इनकता हो गया। उसका अमल करता हूं। इल्ला मिन सलास, तीन चीजें, सिवाय तीन चीज, वालदुन सालिहुन, ठीक है, सौले औलाद जो यदउ लहू, उसके लिए दुआ करे, दुआ करे, दुआ में आ गया, और एक फरमाया सदकतुन जारियत, सदका जारिया, जो उसके मरने के बाद भी मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, कुआं को शगीर दुआ छोड़- दिया। कुआं को दुआ किया, शगीर छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। और फरमाया औ इल्मुन युनतफउ बिही, ऐसा इल्म अपने पीछे छोड़ जाए जो नाफे हो। जो उसके बाद भी लोगों को फायदा फायदा दे पहुंचाता रहा। ठीक है, इल्म रहे, नाफे। नफा देता रहे। ऐसे ही, इसके अलावा फरमाया उसके अमल मुनकते हो जाते ठीक है, बात है। ये तीन उन्होंने कहा कि देखें, शाद देखें, फरमाते हैं देखें, पूरे देखें, वाले। अभी तीन पे ये कहते जी, अल्लाह हैं इन तीन से बाहर नहीं है, बहुत अजीब व गरीब यानी दलील है जी। मुगालते की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बहस इसमें नहीं है कि उस वफात पाने वाले का नामा अमल बंद रहता है या खुला रहता है, इस हदीस का ताल्लुक उससे है। वफात मुनक़ता पाने हो वाला जाता शख्स जब वफात पा गया तो उसका नामा अमल बंद हो गया, मगर ये तीन ये खुले रहते हैं। बहस इसमें नहीं है। उसके जाने के बाद जो बाकी मानदगान है वो उसे कोई गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या हुक्म है, बहस इसमें है, उसमें थोड़ी है। सही, वो तो बाज तोहफे गवर्नमेंट भी पाबंदी लगा देती है कि आप ये गिफ्ट नहीं कर सकते, इसका पार्सल नहीं पाबंदी जा आप साबित करें। नोटिफिकेशन आप पेश ऐसा करेंगे। नोटिफिकेशन ऐसा आप होता है। साबित करें। लेकिन रसूल एक की कहाँ चलेगी। मना है? पाबंदी कहाँ है वो पेश कर नोटिफिकेशन यही मैं पेश- बता रहा हूँ ना, कहाँ है? अल्लाह के रसूल ने अमली तौर पर करके, कुरान नबी के जमाने में था, जब अल्लाह के रसूल के जमाने में था, किसी सहाबी ने भी अपने अजीज तरीन बंदे की वफात पर कुरान पढ़ के उसे बख्शा। सहाबा को जमा किया, आओ यार एक एक पारा बांट के यार तुम पढ़ के। वैसे- अब दूसरी बात है, जो मदरसे से किराए के लोग लाए जाते हैं, किराए के लोग, हाँ, किराए और के, उनको पढ़वाया जाता है, वो देखिए, उन्हें क्या पड़ी ये है, किराए वाली इस तरह मुझे समझ में मैं बिल्कुल- उन्हें क्या पड़ी है देखिए, कि मेरी चीज़ों नानी को बख्शवाएंगे, चीजों को मेरी नानी से उनको क्या लेना देना। बिल्कुल, जो देखें हर आपकी नानी- इबादत में कारी साहब की नानी से क्या लेना देना? इजाफी खामियां जमा हो सकती हैं, लेकिन उससे हम मुस्तकिल इबादत को तो मना नहीं कर देंगे ना भाई। अब कोई पैसा दे करके किसी को बुलाता है कि मेरे वालिद को बैठ के पढ़ो, हाँ। तो उसका ये अमल गलत है। लेकिन अच्छा, गलत क्यों है? ये भी ठीक है, नहीं, कोई हरज सर, नहीं कह है। रहे हैं ये भी ठीक है, किराए ये में भी भी सारे ठीक है। सवाब एक हो सकते हैं। एतबार से कि वो खुद उसने ना पढ़े, पैसा खर्च किया, खुद पढ़ना चाहिए था, जाए, उसे नहीं आता पढ़ना है। चाहिए। उसमें उसने एक कहा खराबी- मुझे तो नहीं आता है, इसके जरिए से पढ़वा। अभी क्या टाइम- आता हो ना पढ़े तो ये गलत है। रवानी सबसे साहब, पैसा बैठ के टाइम पढ़ना कितना बाकी और है? वो थोड़े से आपको अभी बताया, मेरे अब से आप इतनी सारा गुजारिश अगर- है, आपसे अभी सिर्फ बात इतनी पूरी मैंने करा, गुजारिश बात करवाई पूरी है। करा। 2 मिनट देंगे ना, मैं पहले इनसे सुन अगर सिर्फ 2 मिनट मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, एक मजेदार आप आपके- सवाल आप करें। मुझे इजाजत दें, मैं सवाल कर मुफ्ती रहा हूँ। आप एक उसूल कायम फरमा रहे हैं कि वही इबादत का सवाब बुजुर्गों को पहुंचेगा जो हुजूर ने की होगी, और फिर दूसरी तरफ हुक्म लगाते हैं कि तमाम बदनी और माली इबादत वो उसका सवाब पहुंचता है। सही। तो तमाम माली इबादत का सबूत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब कौली इबादत आज में मैंने एक पहले- चीज साबित आ गया कर ना, दी, आज उससे शिया बाकी सुन्नी- साबित ना हो, शिया और सुन्नी उनकी एक हो गए हैं। देखिए, कुर्बानी का आ गया, आपने सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, अली मेरी तरफ से मेरे वो बाद करते भी थे। आप कुर्बानी करते रहना, और वो करते थे। जी, आपने वसीयत फरमाई, जी। करते थे। इसी तरह इसी से अब हम कहें कि जी नहीं ये सिर्फ हजरत अली करेंगे, नहीं, इससे हमारा भी जवाब,
हर मसले के अंदर एक वुसअत होती है, वो हमारे वही लिए भी वो वुसअत जवाब आपने बंद पैदा कर करेगी। दी है। उसी इसी वुसअत तरह को आपने कुर्बानी का दुम्बा मंगवाया जिसके सुम काले थे, पेट का कुछ हिस्सा काला था, आंखों के इर्द गिर्द काले बाल थे, उसको पूरा काला ही तकरीबन। ना पूरा काला नहीं था, बाकी वाइट था। अच्छा, ये जगह उसकी काली थी, यानी खूबसूरत दिखने में लगता था। उसको मंगवाया, आप सलाम ने हजरत आयशा से कहा छुरी लाओ, वो छुरी लाई, आपने दुम्बे को लिटाया, और लिटाने के बाद जो आपने दुआ के अल्फाज कहे, अल्लाहुम्मा मिनका वालका, ये कहने के बाद फरमाया ये तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन, सुभान अल्लाह। पूरी उम्मत की तरफ से भी, पूरी आल की तरफ से भी, अपनी पूरी जात की तरफ से भी, बेहतर। आपने तीनों की तरफ से एक ही दुम्बे को कुर्बान कर दिया। जी जी, ये प्रूफ है इस बात का कि आप माली सदका कर सकते हैं। कर सकते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कौली भी कर सकते हैं, उस कौली में कौली की तिलावत दलील भी होनी है। चाहिए ना। दी मैंने दुआ- दुआ दुआ- की, दुआ दुआ तो की। आपने खुद और वह इल्मुन देखिए, युन्तफ़अ बिही, एक मिनट, वह इल्मुन युन्तफ़अ बिही। देखिए, जो इल्म पढ़ाया जाता है दुआ या कोई के शागिर्द लिए- आगे पढ़ाता है, वो क्या माल खर्च कर रहा माल है, है? देखिए, नाफे जबान है ना। इल्म नाफे है। दुआ के लिए आपने खुद फरमाया मरने वाला तुम्हारी किसी चीज का इतना मोहताज नहीं होता जितना तुम्हारी दुआओं दुआ का। का मोहताज है, बिल्कुल ठीक है। और कब्र के ऊपर भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब ये मसूलियत का वक्त है, इस भाई की साबित कदमी की दुआ करो। रुक के आपने दुआ कराई, तो ये दुआ तो साबित है। आप हर चीज दुआ में डालकर, कुरान में दुआया कलिमात लेकिन हैं। आपने इस दुआ को नहीं बयान किया था ना, कम से कम आपने तो इसकी भी नफी कर दी थी। नहीं, दुआ तो जब आप आपने कहा कि सारी कौली इबादतें नहीं हैं, तो उसकी भी नफी हो वैसे गई। मुफ्ती साहब, ऐसे